welcome to my YouTube channel Cadreamers. Today we are going to discuss about the chapter number 1, Introduction to Strategic Management. So first of all, let's have a look on the topics which we are going to discuss in this chapter. So firstly, we will discuss about the business policy, concept of management, concept of strategy, strategic management जिसमें हम उसकी importance और limitations को भी पढ़ेंगे. Then we will study about the strategic levels in organizations which are of 3 types: corporate, business and functional. And lastly, we will discuss about the strategic management in government and not for profit organization. So let's begin with the introduction. This chapter is an attempt to highlight the concepts and significance of business policy and strategic management. Basically इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बिजनेस पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की कॉन्सेप्ट्स को और उनकी सिग्निफिकेंस को कि क्या उनकी नीड है, क्यों हमें किसी भी बिजनेस में बिजनेस पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. With the increased competition, the management of business has acquired strategic dimension. कि जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है उसके साथ साथ किसी भी हर बिजनेस की जो मैनेजमेंट है उसने स्ट्रैटेजिक डायमेंशन को एक्वायर करना शुरू कर दिया है. स्ट्रैटेजिक का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो आपको आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करती है और आपको एक एडवांटेज क्रिएट करके दे देती है उस एनवायरनमेंट में जिससे आप अपने कॉम्पिटिटर्स को फेस कर सके, बीट कर सके. All executives and professionals, including the chartered accountants working towards growth of their business, must possess sound knowledge of business policy and strategic management. It means कि जितने भी हमारे सीनियर मैनेजमेंट के मेंबर्स होते हैं, CEO, CFO, प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे कि CA, CS, उन्हें और जो अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए वर्क कर रहे हैं उन्हें बिजनेस पॉलिसी और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. दे मस्ट बी परफेक्ट इन दैट. we can't say that they must be perfect, but एक कहते हैं ना कि हम लोगों को महारत हासिल होनी चाहिए. So they must have the sound knowledge of these two topics. So without wasting any time, let's begin with the topic business policy. The origin of business policy can be tracked back to 1911 when Harvard Business School introduced an integrated course in management aimed at the creation of general management capability among the business executives. मतलब ये कि जो बिजनेस पॉलिसी है जो उसका जो ओरिजिनेशन हुआ था वो 1911 में हुआ था जब हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने अपना एक इंटीग्रेटिव कोर्स इंट्रोड्यूस करा था अपने मैनेजमेंट स्कूल में, जिसका मतलब एम था कि जनरल मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज को क्रिएट करना बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स के अंदर. This course was based on interactive case studies which had been in use at the school for instructional purposes. और बेसिक और जनरली हम इस कोर्स में जो वो लोग पढ़ाते थे वो थी केस स्टडीज जो वो अपने स्कूल में इंस्ट्रक्शनल पर्पसेस के लिए यूज करते थे. However, the introduction of business policy in the curriculum of business schools and management institutes came much later. लेकिन उसके बावजूद भी जो बिजनेस पॉलिसी का जो इंट्रोडक्शन हुआ बिजनेस स्कूल्स और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में वो बहुत टाइम बाद हुआ. In 1969, the American Assembly of Collegiate Schools of Business, a regulatory body for business schools, made the course of business policy a mandatory requirement for the purpose of recognition of business schools or management institutes. कि 1969 में अमेरिकन असेंबली ऑफ कॉलेजिएट स्कूल्स ऑफ बिजनेस है, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है अमेरिका की बिजनेस स्कूल्स के लिए, जिसने बिजनेस पॉलिसी के कोर्स को मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बना दिया किसी भी बिजनेस स्कूल और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के रिकॉग्निशन के लिए. तो मैंने आप देख रहे होंगे इन पेजेस पर मैंने कुछ लाइंस को कुछ पैराग्राफ्स को हाईलाइट कर रखा है, तो आप उसको ये समझ कर लिए कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने हाईलाइट करे हुए हैं, तो उन्हें आप थोड़ा ज़रा ध्यान से पढ़िएगा. सो नाउ मूविंग फर्दर, during the next few decades, business policy as a course spread to different management institutes across different nations and became an integral part of management curriculum. कि बिजनेस पॉलिसी के इंट्रोडक्शन के बाद ही जो बिजनेस पॉलिसी का जो कोर्स था वो काफ़ी नेशंस में अलग अलग मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में काफ़ी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो है वो इंटीग्रल पार्ट बन गया लोगों की मैनेजमेंट करिकुलम एक्टिविटीज़ का. बेसिकली बिजनेस पॉलिसी इज कंसिडर्ड एज अ हायर लेवल इंटीग्रेटिव कोर्स ऑफर्ड टू स्टूडेंट्स हु हैव प्रीवियसली बीन थ्रू अ सेट ऑफ कोर्सेज इन कोर फंक्शनल एरियाज. बिजनेस पॉलिसी जो है वो एक हायर लेवल इंटीग्रेटिव कोर्स की तरह ऑफर किया जाने लगा किसी भी बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल में या इंस्टीट्यूट में. मैं आपको बता देती हूँ कि इंटीग्रेटिव कोर्स का मतलब होता है कि जब हम क्या कहते हैं लाइक अगर हम हमारे इंडिया में देखें तो हम जब पहले ग्रेजुएशन करते हैं फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट्स कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जो आपको 5 ईयर का इंटीग्रेटिव कोर्स आपको प्लान कर देते हैं कि अगर आपने लाइक हम लोग बीकॉम के बाद MA
एमबीए करना प्रेफर करते हैं, तो लाइक अगर हमने बीकॉम कर लिया, अगर हमने इंटीग्रेटेड कोर्स पर एडमिशन नहीं लिया है तो हम पहले बीकॉम के लिए करेंगे, उसके बाद एमबीए के लिए हमें अलग से एडमिशन लेना पड़ता है। लेकिन अगर हमने इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन ले रखा है तो वो हमारा 3 साल का उसमें हमारा बीकॉम होगा और 2 साल के उसमें हमारा एमबीए उसमें अटैच होगा, कि हमारे वो इंटीग्रेटेड कोर्स है, हमें 5 साल उस कॉलेज में वो पूरी स्टडी एक ही कोर्स की तरह हमें पढ़ाई जाती है, क्योंकि इसीलिए उसे इंटीग्रेटेड कोर्स कहा जाता है। ऐसे ही जो बिजनेस पॉलिसी का जो कोर्स था वो उन्हें उन जो मेन फंक्शनल कोर सब्जेक्ट्स हुआ करते थे उनके साथ मर्ज करके स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर दिया। The term business policy has been traditionally used through new titles for the course sprang up later. और बाद में जो बिजनेस पॉलिसी है वो ट्रेडिशनली अपने टाइटल्स को चेंज करने लगी। According to William F. Glueck, evolution of business policy arose from the developments in the use of planning techniques by managers. अब जब कोई बिजनेस स्टूडेंट है, जब वो मैनेजर बनेगा, किसी कंपनी में काम करना शुरू करेगा, तो जो बिजनेस पॉलिसी है वो बेसिकली डेवलप होना शुरू हुई थी जो मैनेजर्स के प्लानिंग टेक्निक्स थी। जब उन्होंने उनको डेवलप करना शुरू किया, तो जब उनके प्लानिंग टेक्निक्स को उन्होंने डेवलप किया, वहीं से बिजनेस पॉलिसी जो है वो अराइज होना शुरू हुई थी। स्टार्टिंग फ्रॉम डे टू डे प्लानिंग इन अर्लियर टाइम्स, मैनेजर्स ट्राई टू एंटिसिपेट द फ्यूचर थ्रू प्रिपरेशन ऑफ बजट्स एंड यूजिंग कंट्रोल सिस्टम्स। कि अगर हम देखें कि हमारे जो पहले अर्लियर टाइम्स में जो मैनेजर्स हुआ करते थे वो डे टू डे प्लानिंग करते थे, ताकि वो अपने फ्यूचर को एंटिसिपेट कर सकें अपने बजट्स के प्रिपरेशन के थ्रू और अपने कंट्रोल सिस्टम्स के यूज करके, लाइक कैपिटल बजटिंग एंड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। With the inability of these techniques to adequately emphasize the role of future, long range planning came to be used. लेकिन जो हमारी डे टू डे प्लानिंग हुआ करती थी वो इतनी केपेबल नहीं थी कि वो बिजनेस को या फिर मैनेजर्स को इतना केपेबल बना सके कि वो अपने फ्यूचर को एडिक्वेटली या फिर करेक्टली एंटिसिपेट कर सकें। इसीलिए जो लॉन्ग रेंज प्लानिंग का जो सब टॉपिक था वो यूज में आया, कि अब हम डे टू डे प्लानिंग ना करके एक लॉन्ग पीरियड के लिए प्लानिंग करना शुरू कर दिया था। एंड सून लॉन्ग रेंज प्लानिंग वाज रिप्लेस्ड बाय स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। और जल्द ही जो लॉन्ग रेंज प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो रिप्लेस कर दिया गया स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से, और बाद में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को रिप्लेस कर दिया गया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से। And later by strategic management, a term that is currently used to describe the process of strategy formulation, implementation and control. कि अगर हम strategic management को simple words में अगर समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि that it is a process of strategy formulation, implementation and control. कि जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम अपनी स्ट्रैटेजीज को फॉर्मुलेट करते हैं, बनाते हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं और उन्हें कंट्रोल करते हैं। जो लास्ट के 2 पैरास हैं, येलो कलर से जो मैंने हाईलाइट करा है और जो ग्रीन कलर से हाईलाइट करा है, बेसिकली एक क्रक्स है जो अभी हमने पूरा टॉपिक पढ़ा बिजनेस पॉलिसी का। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। That business policy can be defined as the study of functions and responsibilities of senior management, the crucial problems that affect success in the total enterprise, and decisions that determine the direction of the organization and shape its future. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बिजनेस पॉलिसी को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जो बिजनेस पॉलिसी है वो हमारे सीनियर मैनेजमेंट के फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की स्टडी होती है, हमारी जो क्रूशियल प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एज ए होल इफेक्ट कर रही होती हैं उसकी स्टडी होती है, एंड थर्डली जो डिसीजंस हमारे ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन को डिटरमाइन करते हैं और उसका फ्यूचर शेप करते हैं उनकी स्टडी होती है। The problems of policy in business, like those of policy in public affairs, have to do with the choice of purposes, the molding of organizational identity and character, the continuous definition of what needs to be done, and the mobilization of resources for the attainment of goals in the face of competition or adverse circumstance. मीन्स जो बिजनेस पॉलिसी है उसके थ्रू जो मैनेजमेंट है उसका जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिटी को मोल्ड कर सके, अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर सके और अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सके अपने गोल्स को ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए और एडवर्स सर्कमस्टांसेस में अपने कॉम्पिटिटर्स को फेस कर सके, और इन सब चीज़ों के लिए ही बिजनेस पॉलिसी ज़रूरी होती है। So at the last, business policy tends to emphasize on the rational analytical aspect of strategic management. इसका मतलब ये हुआ कि जो बिजनेस पॉलिसी है वो रैशनल एनालिटिकल एस्पेक्ट होती है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। रैशनल एनालिटिकल एस्पेक्ट का मतलब होता है कि जो हमारी बिजनेस पॉलिसी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में जो भी हम स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं वो क्या कहते हैं, एक तरीके से
फैक्ट्स, लॉजिक्स, रिसर्च पर क्या कहते हैं डिपेंड होती है। वो ये नहीं होता है कि एट रैंडम कोई भी आया और किसी ने भी कोई भी पॉलिसी बना दी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो बिजनेस पॉलिसी है उसे मतलब बहुत ही ज़्यादा किसी भी चीज़ के बारे में रिसर्च करके, प्लान करके, लॉजिक्स और फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए कि क्या ट्रेंड है, उन सब चीज़ों को कंक्लूड करने के बाद ही हम बनाते हैं। इसलिए वो होती है रैशनल एनालिटिकल एस्पेक्ट। It presents a framework for the understanding strategic decision making in the organizations। और जो बिजनेस पॉलिसी है वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कि वो अपने स्ट्रैटेजिक डिसीजंस को समझ सकें कि वो क्या करना है और क्या कर रहे हैं। Such a framework enables a manager to make preparations for handling general management responsibilities effectively। और यही जो बिजनेस पॉलिसीज है यही हमारे मैनेजर को केपेबल करती है कि वो अपनी जनरल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इफेक्टिवली हैंडल कर सकें। So this was all the topic, that is business policy।